Hi dear students, welcome back once again in Buddha Polytechnic College. I am Ankit sir. I am teaching you soft skills. You know that dear students, what is the importance of soft skills? Because dear students, this is a very helpful for your career because after completed diploma you want to a job, and before get a job you have to follow soft skills. With the help of soft skills, you can change your behavior, you can change your manner, you can change your talking skills, you can change your communication skills. Okay, dear student, this is very important. So, I am teaching you BSEP यानी बुद्धा स्किल इनहेंसिंग प्रोग्राम, एंड इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स soft skills. Okay, and in previous videos we discuss what is skills, and after that what is soft skills. So in previous videos we discuss skills, and after that how can improve our skills, and after that we discuss also soft skills, and there are and also we discuss how we can improve our soft skills, and what is the properties of and what is the advantage of soft skills. After that we discuss also benefits of soft skills. Okay dear students, I hope you get it. And now 2 days in soft skills, next point is anger. This is very important. Anger management. Anger management. Dear students, this is very highlighted topic, because you know every person has a hot anger. मीन्स स्टूडेंट्स आपने ये बीमारी देखा होगा, हर पर्सन के अंदर होता है। स्टूडेंट, किसी ने कहा है कि अगर आपको एंगर आता है यानी आपको क्रोध आता है तो आपका माइंड काम नहीं करता है, और दिस इज राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज एंगर मैनेजमेंट। व्हाट इज एंगर मैनेजमेंट, तो क्या होता है? अब स्टूडेंट्स, इस एंगर मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे क्या? व्हाट इज एंगर, व्हाट इज एंगर। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा व्हाट इज एंगर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम डियर स्टूडेंट्स कॉजेज ऑफ एंगर, कॉजेज ऑफ एंगर। एंड डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ एंगर। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंट्रोलिंग ऑफ एंगर, नेक्स्ट पढ़ेंगे कंट्रोलिंग एंगर। कंट्रोलिंग एंगर। एंड आफ्टर दैट एडवांस सॉल्यूशन एंड थेरेपीज, हाउ कैन रिजॉल्व आवर एंगर विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ थेरेपीज, ठीक है। So this is the point, advanced solution and therapies, advanced solution and therapies. Okay, and next is precaution of anger management, precaution of anger management। Precaution of anger management. Okay, this is our topics. Our main topic is anger management, and included by what is anger, causes of anger, symptoms of anger, controlling anger, advanced solution of therapies, and
precaution of anger management. So students, I want to clarify you that what is our topics, that is anger management. And in anger management we discuss here what is anger. एंगर क्या होता है, एक्चुअली एंगर का डिफिनेशन क्या होता है, एंगर आप कहते किसको हैं, कैसे बोल सकते हैं कि दिस इज एंगर, ओके, एंड कॉजेज ऑफ एंगर। आफ्टर दैट जब एंगर होता है तो उसके कॉज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, कैसे एंगर होता है। थर्ड इज सिम्टम्स ऑफ एंगर। सिम्टम्स डिफरेंट, लक्षण जिसको बोलते हैं, ठीक है, लक्षण समझते हैं, सिम्टम्स होते हैं, यानी सिम्टम्स कैसे होते हैं एंगर के। एंगर का कैसे पता चलता है कि हम आई एम गोइंग टू बी एंग्री, ठीक है, आई एम गोइंग टू बी एंग्री, हाउ, कैसे, दिस वी डिस्कस हियर सिम्टम्स ऑफ एंगर। एंड नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग एंगर। कंट्रोलिंग एंगर का मतलब हाउ कैन आई कंट्रोल आवर एंगर विद him or herself, this is our topic, how can control means कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। so next is advanced solution and therapies, means students how to resolve our anger with the help of solution and therapies, okay, solution therapies means कैसे हम इसके एंगर को रिमूव कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या होते हैं, इसकी थेरेपीज क्या होती हैं। सो एंड नेक्स्ट इज प्रिकॉशन ऑफ एंगर मैनेजमेंट। प्रिकॉशन ऑफ एंगर मैनेजमेंट मीन्स प्रिकॉशन ऑफ एंगर मैनेजमेंट मीन्स स्टूडेंट्स कैसे कैसे प्रिकॉशंस होते हैं एंगर मैनेजमेंट के, प्रिकॉशन क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे अगर आप चीजों को करते हैं तो यू कैन सेव योर लाइफ, यू कैन सेव हिमसेल्फ और हरसेल्फ with the very dangerous thing, anger, because this is very dangerous, because this point destroy your whole life. So in a short time your life will be goes in hell, you can't do anything, because this is very important, anger management. So now dear students, we discuss here anger. What is anger? What is anger? Before starting anger management, I will discuss here anger management. What is anger management? Anger management is a anger management is a psychotherapy psychotherapeutic program for anger prevention and control. What this is the anger management? एंगर मैनेजमेंट का मतलब है कैसे हम मैनेज करते हैं एंगर को, ओके, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ एंगर मैनेजमेंट। मींस एंगर मैनेजमेंट इज अ साइकोथेरेप्यूटिक प्रोग्राम फॉर एंगर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मींस एंगर मैनेजमेंट एक ऐसा साइकोथेरेप्यूटिक प्रोग्राम है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एंगर को प्रिवेंशन यानी रोक सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यही होता है एंगर मैनेजमेंट। यू नो दिस इज एंगर मैनेजमेंट। मींस एंगर मैनेजमेंट मींस क्या, एंगर मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जिसके थ्रू से साइकोथेरेप्यूटिक के हेल्प की सहायता से, प्रोग्राम की हेल्प की सहायता से हम एंगर प्रिवेंशन को एंगर को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और आल्सो वी कैन कंट्रोल ऑन दिस। सो दिस इज एंगर मैनेजमेंट। एंड our next topic is what is anger. What is anger? So you can see here anger is a strong, what is anger? What is anger? So dear students, listen, anger is a strong feeling of aggravation
strong feeling of aggravation or irritation towards. Okay, dear students, this is the definition of anger. What is anger? Anger is a strong feeling of aggravation or irritation towards. एंगर एक ऐसा फीलिंग होता है, एक ऐसा मजबूत फीलिंग होता है जो आपको एग्रीवेशन की तरफ ले जाता है। एग्रीवेशन के साथ साथ क्या करता है, इरिटेशन की तरफ ले जाता है। एग्रीवेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स गंभीर कर देता है। गंभीर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका किसी से कोई झगड़ा हो गया, छोटी सी झगड़ा था, लेकिन आप जब क्रोध में आते हैं, यानी एंगर जब आपके अंदर आ जाता है, तो उस छोटे से मैटर को क्या करते हैं, बहुत सीरियस बना देते हैं और उस छोटी सी बात को लेकर बहुत सारा नुकसान हो जाता है, कत्ल हो जाता है, खून हो जाता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल से देखा होगा। तो दैट इज एग्रीवेशन। एग्रीवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सीरियस बना देना, छोटी सी चीज को क्या करना, सीरियस बना देना। और इससे क्या होता है, एंगर। ये किसका प्रोसेस है, एंगर का प्रोसेस है मींस। और उसके बाद आपको इरिटेशन होगा और इरिटेशन की तरफ चले जाएंगे, और इरिटेशन जब होता है तो एंगर आता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे किसी ऑफिस में जाते हैं काम उम करवाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस में होता है कि जो एम्प्लॉय ज्यादा काम करता है या कुछ ऐसा काम करता है, उसके पास आप जाएं तो इरिटेट रहता है, और जैसे इरिटेट होता है आप बोले सर, तो बोलेगा क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द इरिटेशन। और द originator of anger is known as irritation. How anger will be generate? When you have to feel irritation, and you have to make any point or any things have aggravation, so you can feel you are in a anger. So dear students, you can see here anger is a strong feeling of aggravation or irritation towards, means जो एंगर होता है वो ऐसी मजबूत फीलिंग होती है, एक मजबूत एहसास होता है जो आपको किसी भी चीज को सीरियस बनाने के साथ साथ आपको इरिटेशन की तरफ ले जाता है, जिससे आप एंगर हो जाते हैं, आप क्रोधित हो जाते हैं। दिस इज द पॉइंट। एंड आफ्टर दैट एंगर, डियर स्टूडेंट्स, एंगर का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे ये दिखता है, इसके भी कुछ हम पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे होता क्या है, कैसे आपको लगता है कि एंगर आने वाला है या कैसे लगता है कि हम एंग्री हैं, ये हम इस पॉइंट को देखेंगे। जैसा है थ्रेटेंड और अटैक्ड, थ्रेटेंड और अटैक्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेट होंगे आप और पावरलेस होंगे, या like we are being treated unfairly, like we are being treated unfairly। ओके, देखिए ये आपको दिखते कैसे हैं, ठीक है, ये मतलब कैसे पता चलता है, इसमें होता क्या, क्यों एंगर आता है, या तो आप थ्रेटन किए जाते हैं किसी के द्वारा, या तो अटैक। मान लीजिए आपको कोई झगड़ा करने वाला आता है, मारने आता है, तो जाहिर सी बात है जब वो मारने आएगा तो आप भी मारना चाहेंगे, तो आपको एंग्री होना पड़ेगा, क्रोध होना पड़ेगा। आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, बॉडी का मूवमेंट, सारा चीज क्या होगा, चेंज होगा। और जब ये सारा चीज चेंज होगा तो क्या करेंगे आप, ये देखेंगे हाँ ये चीजें आ रही हैं, यानी थ्रेटेड ऑफ अटैक्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेटेड ऑफ पावरलेस। दूसरी चीज क्या होता है, एंगर दिखता कैसे है, या तो कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड, दैट पर्सन इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड एंड दैट पर्सन हैज नो पावर। ठीक है, पावरलेस को दुबला पतला हो तो उसको भी इरिटेशन आता है, बिकॉज ही कांट डू एनीथिंग, ही थिंक ऑलवेज मीन्स वो हमेशा यही सोचता है कि आई कांट डू, और आई कांट डू करते करते वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और आई कांट डू करते करते फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसमें एंगर आ जाता है, और जब एंगर आता है तो किसी छोटी से छोटी पॉइंट पे भी क्या करता है, एंगर का रूप ले लेता है। और जब एंगर ले लेगा तो जाहिर सी बात है जहां एंगर वहां आपका लॉस होना 110% पॉसिबल है। सो एंड नेक्स्ट इज
लाइक वी आर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, या किसी से हम फेयरली रहते हैं और बाय द वे वो हमको क्या करता है, ट्रीट कर देता है, यानी हमको चीट कर देता है, धोखा दे देता है, तब भी हमको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। यानी जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई किसी का आप हेल्प करते हैं, हेल्प करने के साथ साथ क्या है, आप उसको बिलीव करते हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट पर वो आपको चीट करता है, तो जहां चीट करता है वहां आपको क्या लगेगा कि दिस इज नॉट गुड, so you will be anger, you will be in anger form, so your face is just like a fire, because you are deep in anger. So this is okay. And dear students, anger management में our next point is symptoms of anger. Symptoms of anger. Symptoms of anger. Dear students, आपको पता होगा, you know that if you are suffering any disease, so you get it या you feel it some types of symptoms. जैसे मान लीजिए आपको फीवर होता है, तो आपकी फीवर होती है तो क्या होता है, बॉडी हीट होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, या कुछ ऐसी कंडीशन होता है जिससे आपको लगता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ओके। एंड उसी तरह सिम्टम, जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल में जो डेडली कोविड-19 से हम लोग झेल रहे हैं, तो उसके भी सिम्टम्स हैं। क्या सिम्टम्स हैं? जैसे मान लीजिए आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, खांसी आएगी, सर दर्द होगा, टेम्परेचर बॉडी की बढ़ी होगी, तो दिस इज द सिम्टम्स। तो उसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एंगर के भी सिम्टम्स हैं। हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज कि वी आर फेसिंग जस्ट लाइक एंगर। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ एंगर, मीन्स आप कैसे इसको पकड़ सकते हैं कि हम एंगर हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, एंगर पर आपने अगर विन कर लिया, एंगर को आपने विन कर लिया, तो यू आर ग्रेट पर्सन, ठीक है, यू आर ग्रेट पर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में क्या कर देखेंगे, पहला क्या होता है, क्लिंच्ड जॉ और फिस्ट। क्लिंच्ड, CLEANCHED, क्लिंच्ड जॉ और फिस्ट्स। अब ये क्या होता है, क्लिंच जॉ और फिस्ट का मतलब क्या स्टूडेंट्स, जैसे होता है कि जब आप गुस्से में आते हैं, आपने देखा होगा जबड़े को ऐसे करते हैं, यानी दांत को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब जैसे आप जबड़े को दबाते हैं या जबड़े पर अपनी पूरी भड़ास क्या करते हैं, निकालते हैं। ये क्या शो करता है, ये सिम्टम्स होता है। मतलब अगर मैं ऐसा सीरियस हो रहा हूँ या मैं ऐसे दांत कर रहा हूँ, तो व्हाट इज दिस, इट मीन्स आई एम बिगिन विथ एंगर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंगर आ रहा है, क्रोध आ रहा है धीरे धीरे। जैसे कोई आपको ऐसे ब्लगिंग आइज की तरह देख रहा है, तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे लग रहा है गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस चेहरे पर है, कोई मुस्कुराहट नहीं है, तभी आपको लगता है, लग रहा है बंदा सामने वाला क्या है, कहीं ना कहीं एंग्री है। तो व्हाट इज दिस इज द सिम्टम्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज इन हार्ट बीट। इंक्रीज इन हार्ट बीट। सेकेंड इज इंक्रीज in heart beat। हार्ट रेट्स बोल सकते हैं, बीट नहीं, हार्ट रेट बोल दीजिए। इंक्रीज इन हार्ट, दिल धड़कता है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हमको 72 टाइम्स धड़काना है, ज्यादा नहीं धड़काना है, ठीक है। और जब ज्यादा धड़केगा तो आपको गुस्सा आएगा, ओके। यानी जिसको गुस्सा आने वाला होता है, वो क्या होता है, उसके हार्ट की जो रेट होता है, यानी पंपिंग जो हार्ट करता है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसको लगता है कि अब गुस्सा आएगा, नहीं कहेगा हमारा दिमाग एकदम खराब हो रहा है। दिमाग खराब होने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, उसके हार्ट बीट क्या हो जाता है, तेजी आ जाती है, ओके। एंड नेक्स्ट इज रेड फ्लश्ड फेस। नेक्स्ट इज रेड फ्लश्ड फेस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, रेड फ्लश्ड फेस मीन्स रेड फ्लश्ड फेस। स्टूडेंट, इट मीन्स जो भी कैंडिडेट, यानी जो भी पर्सन यानी जो भी ह्यूमन एंगर के सिम्टम्स आते हैं,
तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंगर सिम्टम्स मींस रेड फ्लश्ड फेस मींस उसका चेहरा लाल हो जाता है, यानी वो एंगर आने के पहले उसके चेहरे की जो रौनक होती है वो फिनिश हो जाती है, मींस उसका चेहरा एकदम क्या होता है, रेड हो जाता है, मतलब रेड ब्लड की तरह नहीं होता है, मींस उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है दैट विल बी चेंज, and this is the symptoms of anger. So you can recognize कि that person is suffering anger. So what is your precautions? We are discussing next slides. So near next point is red flushed face, and next is shaking. शेकिंग का मतलब शॉक होना, या शॉक होना बोल सकते हैं, या किसी भी चीज को बहुत सीरियस तरीके से लेना, यानी शेकिंग हो जाता है। नेक्स्ट होता है फीलिंग हॉट इन द फेस, फीलिंग hot in the face or weak. Sorry, weak नहीं, neck. Okay. फीलिंग हॉट इन द फेस और नेक मीन्स स्टूडेंट्स जब आपको एंगर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, एंगर के सिम्टम्स दिखाने का मतलब क्या है कि जब कभी आपको लगता है कि आपको एंगर आ रहा है, ओके, जब लगता है आपको एंगर आ रहा है तो एंगर का एक भी होता है कि आपका चेहरा क्या हो जाता है, हॉट होने लगता है, यानी जैसे लगेगा, आप देखेंगे इधर नफ्स लगाएंगे, अंगुली जब ऐसे नफ्स लगाएंगे तो जो उसका ब्लड का सर्कुलेशन है वो फास्ट तरीके से चलता है, ये भी एक प्रकार का सिम्टम्स है, ठीक है। तो आप इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, यू कैन रिकॉग्नाइज दैट यू आर सफरिंग विद एंगर, okay, this is the example and this is the symptoms of anger. So our next point is, so these friends, this is the these are the symptoms of anger, and we are discussing here and in anger management what is anger, and after that we discuss anger management and symptoms of anger, okay. And now I want to write a quote, anger is one letter, anger is one letter shorter of danger, shorter of danger, pause करना, means anger is one letter. So dear students, this is the quote, how you can understand anger's mean, this is very important for you. What is actually anger को आप बोल क्या सकते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पर देखेंगे, एंगर इज वन लेटर, एंगर इज वन लेटर शॉर्टर ऑफ डेंजर, मीन्स एंगर जो होता है अगर उसको हम छोटे में कर दें, यानी उसको छोटे में कर लें, मतलब छोटे में, बहुत छोटे में अगर बात करें, छोटे लेटर्स की अगर बात करें तो उसका मतलब ही होता है डेंजर, यानी अगर जहां एंगर है वहां खतरा होना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कहीं बनी हुई बात को भी थोड़ा सा गुस्से में आए, पता चला नहीं करना है, व्हाट इज दिस, दिस इज द इन एंगर मैनेजमेंट मींस एंगर इज वन लेटर शॉर्टर ऑफ डेंजर, कि जो एंगर होता है वो क्या होता है कि डेंजर का एक शॉर्टर लेटर है, मतलब समझ लो उसका बच्चा है, जैसे मान लीजिए डेंजर है, डेंजर का बच्चा एंगर, यानी जब एंगर आएगा, एंगर जब आप ज्यादा कर देंगे तो डेंजर हो जाएगा, और जब डेंजर हो जाएगा तो जानते हैं डेंजर मीन्स क्या होता है, मतलब डिस्ट्रॉय होना है, यानी कहीं ना कहीं कोई लॉस, पैसे की लॉस, किसी की डेथ हो जाना, जैसे जो भी है, यानी जो भी है, ये एंगर जो है, एंगर जो है वो डेंजर का क्या है, छोटा सा लड़का है लेकिन बहुत खतरनाक। So dear students, and now this is the quote for you, please wrote down this, and now I erase this, and our next point is in our anger management, our next point is anger cycle, this is anger
साइकिल। अब स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस मीन्स एंगर साइकिल कैसे वर्क करता है, आई वांट टू टेल यू हियर। एंगर साइकिल के लिए एक हम सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, सेमी सर्कल हम बनाएंगे। ओके, दिस इज सेमी सर्कल। हाउ एंगर साइकिल विल रन, यानी एक एंगर कैसे चलता है, यानी आपको क्रोध कैसे आता है, गुस्सा कैसे आता है, उसको हम साइकिलिंग के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे एक्सेलेरेशन, यहां लिखेंगे हम एक्सेलेरेशन, ओके। एक्सेलेरेशन के बाद आएगा एक्सप्लोजन, और जब एक्सप्लोजन आता है तो वहां आता है वायलेंस। वायलेंस आप जानते हैं, हिंसा, ठीक है। और यहां से नीचे जब आते हैं तो होता है पोस्ट एक्सप्लोजन। पोस्ट एक्सप्लोजन, देखिए दिस इज एंगर साइकिल एंड दिस इज वेरी डेंजरस। स्टूडेंट्स अगर आप इस एंगर साइकिल को समझ सकते हैं तो आई होप यू कैन कंट्रोल 10 or 20% ऑन योर एंगर, यानी आप इसको अगर समझ सकते हैं कैसे ये लॉस करता है, कैसे इंक्रीज कर सकता है, तो आई होप यू कैन कंट्रोल ऑन एंगर। आप एंगर पर 100% कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर लेंगे, और यू हैव टू डू दिस, और आपको करना भी चाहिए। हमने पहले भी बताया है डेंजर, एंगर क्या होता है, एंगर इज अ लिटिल और शॉर्टर डेंजर फॉर्म ऑफ डेंजर, मीन्स जो एंगर होता है वह डेंजर का एक खतरनाक का एक छोटा सा रूप है, यानी वो धीरे धीरे कहाँ बढ़ता है, खतरनाक की तरफ। देखिए होता क्या है, एक्सीलरेशन क्या होता है इसको समझने के लिए, और एक्सप्लोजन क्या होता है, पोस्ट एक्सप्लोजन क्या होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ आपको कुछ अनबन हो रही है, धीरे धीरे बात हो रही है, और वो बात धीरे धीरे ज्यादा हो रही है, इसका मतलब वहां से एक्सीलरेशन हो रहा है, किसका, गुस्से का एक्सीलरेशन चल रहा है, गुस्से का एक्सीलरेशन चल रहा है। गुस्से का जब एक्सीलरेशन चल रहा है यानी वो धीरे धीरे इंप्रूव में है, वो थोड़ा सा उसको गुस्सा आया और वो थोड़ा गुस्सा बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, और जब बढ़ गया तो एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन का मतलब फूट जाना, तब वो वायलेंस हो गया, ठीक है। और वायलेंस के बाद पोस्ट वायलेंस होता है, और वो जब खत्म हो जाता है वायलेंस, उसके बाद क्या होता है, पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते हैं, रिपेंट करते हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 2-4 दोस्त लोग बैठे हुए हैं, सपोज दैट 2-4 दोस्त बैठे हुए हैं और चाय पानी नाश्ता जो भी कहीं कर रहे हैं, अकेले में हैं, 2-4 लोग हैं, उसमें किसी का बहुत मजा ले रहे हैं, तो वो बंदा क्या हो रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो सुन रहा है कैसे, उसके अंदर एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है, टेबल पे बैठे हैं, एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, यानी गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया उसका, बने बोलते बर्दाश्त करते करते हद हो गई, तो जो बर्दाश्त किया उसके बाद कहता है अब रुक जाओ, उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट पकड़ के कॉलर पकड़ लेता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन, यानी अब वो क्या करता है, उससे कॉलर पकड़ लेता है, हाथ मुंह की जो भी होता है होने लगती है, यानी ये होता है हमारा वायलेंस होने लगता है, नहीं हिंसा होने लगता है। मान लीजिए किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, छोटी सी बात पर क्या हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, एक्सीलरेशन के बाद एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन में वायलेंस हुआ, और वायलेंस के साथ साथ पोस्ट एक्सप्लोजन हुआ। और उस पोस्ट एक्सप्लोजन में क्या होता है, जब 1-2 घंटे बाद, एक दिन के बाद क्या करते हैं यार, फालतू का झगड़ा कर लिए, साला झूठी का झगड़ा कर लिए, क्या फायदा हुआ, झूठी छोटी सी बात पर था, झगड़ा कर लिए, ये नुकसान हो गया, उसका सर फट गया, उसका पैर टूट गया, उसका हाथ टूट गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोस्ट एक्सप्लोजन। सो स्टूडेंट प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज इन दिस एज 90% केसेस इंक्रीज ऑन दिस, 99% या 90% हम लेते हैं जो केसेस आते हैं इसी से होता है। कहीं मार्केट में गए हैं, मार्केट में थोड़ा सा किसी से खरोच आ गया, धक्का लग गया, छोटी सी तो बात है, इससे कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो एक्सीलरेशन धीरे धीरे होकर होता रहा, मान लिया तू मैं होता रहा, पता चला तब तक एक्सप्लोजन हो गया, और जब एक्सप्लोजन हुआ तो मार धक्कर धुक्कर शुरू हो गया, यानी कॉलर पकड़ लिया, मार लिया, तोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। वो वायलेंस यानी हिंसा में बदल जाता है। यानी हिंसा का मतलब झगड़े में क्या होता है, गुस्सा आता है, क्या होता है, वो किसी का खून का प्यासा हो जाता है, इसको आज जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
लेकिन उसके बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, यानी जब एक दिन, आधा दिन, 2 घंटे निकल जाता है, या पुलिस आ जाती है, 2-4, 10,000, 15,000, 20,000 क्या करता है, झेल लेता है, तो पोस्ट एक्सप्लोजन का काम करता है। मीन्स वो पछता रिपेंट करता है, यार फालतू का झगड़ा कर लिया, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, दिस इज द साइकिल ऑफ एंगर। ये होता है स्टूडेंट साइकिल ऑफ एंगर का। तो यहाँ अगर आप यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, यानी एक्सीलेटर समझते हैं ना, एक्सीलेशन वहीं से बना है जहां आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी त्वरण जिसको बोलते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेशन। यानी क्या करना, धीरे धीरे उसको कोई फोर्स कर रहा है, किसी बंदे को बैठा है, बार बार कोई उंगली कर रहा है, बार बार उसको पिंच कर रहा है, कब तक बर्दाश्त करेगा, जब नहीं बर्दाश्त होगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्लोजन के साथ वायलेंस करेगा, यानी मार धाड़ झगड़ा जो भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद पोस्ट एक्सप्लोजन करेगा। मीन्स पोस्ट एक्सप्लोजन क्या करेगा, रिपेंट करेगा, यार फालतू काम ने ये कर लिया। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंगर साइकिल। I hope you get it. This is the example of anger cycle, and now we discuss anger cycle in detail. That is first is acceleration phase. ये फेज है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट फेज है, ओके। फर्स्ट फेज में ये एक्सीलरेशन होता है, ये सेकेंड फेज है, ओके, एंड दिस इज फाइनल फेज, या इसको थर्ड फेज बोल सकते हैं, फाइनल फेज, जहां पर रिपेंट हम करते हैं, ओनली रिपेंट, कुछ नहीं होता है, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट फेज पर क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये फेज आने की जरूरत ही नहीं है। ओके, दिस इज द एंगर साइकिल शो, एंड वी आर डिस्कसिंग हियर एक्सीलरेशन इन व्हाट इज द फेजेस ऑफ एक्सीलरेशन एंड हाउ एक्सीलरेशन विल बी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होता है, कैसे हम कर सकते हैं। आई एम फेसिंग विथ anger acceleration, and after that explosion, and after that post explosion. So now we discuss here acceleration phase. Acceleration phase. ओके, एक्सीलरेशन फेज में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए एक्सीलरेशन फेज क्या होता है, डिनियल एंड डिस्काउंटिंग ऑफ आउटबर्स्ट। Second is increased hostility and intimidation. Next is more frequent and intense anger. These are the point of acceleration phase. यानी एक्सीलरेशन फेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा कब आने लगता है, डेनियल मतलब क्या, जैसे आप देखते हैं कि कोई डिस्काउंटिंग आप आउटबर्स्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई चीटिंग कर रहा है आपसे, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, या कहीं जैसे मान लीजिए दुकान पर आप गए, कोई सामान ले रहा है, तो आपने देखा कि थोड़ा इस बार भी कम तोला है, धीरे धीरे सारे काम मतलब नाप तोल कम कर रहा है, तो ये भी एक पॉइंट है, एक्सीलरेशन का पॉइंट। उसके बाद आपको गुस्सा आएगा, कहेंगे एक बार बर्दाश्त किए, 2 नहीं कहते हैं, अरे यार बार बार मजा ले रहा था, 1 बार बर्दाश्त कर लिए, 2 बार बर्दाश्त किए, 3 बार बर्दाश्त किए, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब तक पता चलता है मार झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो फेज होता है दैट इज एक्सीलरेशन फेज। एंड दूसरा क्या है, इंक्रीज्ड हॉस्टिलिटी एंड इंटीमेशन, यानी किसी को अभद्रता बोलना, किसी को अभद्र देना, किसी को गाली देना, ठीक है, किसी को गाली देना, बुरा भला करना। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में भी आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जब वो 99 टाइम गाली देता है कृष्ण जी को, तो 100 बार जब आता है तो क्या होता है, गुस्से में आकर क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं और उसका गला कट जाता है। तो ये भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यानी ये आपका एक्सीलरेशन फेज है।
ओके। एंड थर्ड इज मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस एंगर, यानी बार बार किसी को किसी चीज पर बार बार अधिक से अधिक बार फ्रीक्वेंट करना। जैसे मान लीजिए किसी को आप रिगाते हैं, यानी किसी को रिगा रहे हैं तो बार बार रिगाएंगे, कब तक बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा भाई। तो ये होता है आपका एक्सीलरेशन फेज, ये आपका एक्सीलरेशन फेज में आता है। और हम सेकेंड पढ़ेंगे एक्सप्लोजन। कितना हुआ? कितना? ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन फेज। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन phase. What is this, student? This is the middle phase of anger and post explosion. ठीक है, आप यू कैन से एक्सप्लोजन जो फेज होता है, दिस इज द मिडिल फेज ऑफ एक्सीलरेशन एंड पोस्ट एक्सप्लोजन, एंड दिस इज द मीडियम पॉइंट ऑफ दिस एंगर। कैसे होता है इसको भी हम देखते हैं, लिखा है फिजिकल एंड वर्बल एग्रेशन। फिजिकल एंड वर्बल एग्रेशन। ठीक है, अभी एक एक को बताता हूं। डिस्चार्ज ऑफ टेंशन, डिस्चार्ज ऑफ टेंशन, ओके। एंड डिस्ट्रक्टिवनेस, ओके। देखिए कैसे इसको स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट हैं। एक्सप्लोजन फेज में क्या होता है, हमने बताया। एक्सीलरेशन में क्या होता है, जब कोई एंगर धीरे धीरे अंदर गुस्से में है, लेकिन उसका गुस्सा जब बर्स्ट करता है वो एक्सप्लोजन फेज में करता है। कहां पर स्टूडेंट्स? एक्सप्लोजन फेज में। वो कैसे करता है, देखिए लिखा है फिजिकल एंड वर्बल एग्रेशन। जैसे फिजिकल एग्रेशन का मतलब उठा और खींच के एक झापड़ लगा दिया, अभी तक सुन रहा था लेकिन उठा और गुस्सा का उठा खींच के एक झापड़। जब तक सुन रहा था तब तक वो एक्सीलरेशन फेज था, लेकिन जहां उसने झापड़ उठाया देख एक चाटा लगाया गाल पे उसके, वो आपका क्या हो गया? एक्सप्लोजन फेज हो गया। या वर्बल एग्रेशन, वर्बल एग्रेशन का मतलब क्या हो गया? डांट डांट करने लगा, होता ना गाली देते हैं तो गाली जो होता है वो डांट डांट करने लगा, डांट डांट करते करते एकदम पूरा मार झगड़ा स्टार्ट हो गया। दिस इज द एक्सप्लोजन फेज। डांट डांट इतना किया कि उसका भी डांट डांट हो गया, उसका भी डांट डांट हो जाता है। ठीक है। और तीसरा है सेकेंड, डिस्चार्ज ऑफ टेंशन, यानी जब एकदम आदमी टेंशन लिए रहता है, जैसे मान लीजिए हम यही कुछ रखा हुआ है, बोतल गिलास कुछ भी, एकदम टेंशन है, समझ में नहीं आता, जब टेंशन को डिस्चार्ज करना है, उठा के बोतल में पटक दिया, उठा के मोबाइल ही पटक दिया, उठा के किसी को 2 झापड़ लगा दिया, अगर टेंशन दिमाग दे, बार बार टेंशन दिए थे तुम। तो दिस इज द एक्सप्लोजन फेज, मतलब इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होना है, यानी दिस इज, इसको इन सिंपल वे कर सोच सकते हो, लॉस फेज। ठीक है। लॉस फेज मींस क्या है? आपका नुकसान या होना है, या तो फिजिकली या इकोनॉमिकली या कुछ भी होगा। नहीं, फिजिकली का मतलब क्या? हाथ पैर टूट गया। इकोनॉमिकली क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मोबाइल था, मोबाइल उठा के पटक दिया, तोड़ दिया, वो आपका इकोनॉमिकल लॉस हुआ। एंड सेकंड क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपने झगड़ा किया, पुलिस के पास गए, पुलिस भी क्या करेगी? कुछ मुद्रा लेगी, उसमें भी आपका क्या होगा? लॉस होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस फेज इज नोन एज लॉस फेज ऑफ anger. So and next is destructiveness. ओहो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुस्सा चढ़ता है तो छत से कूद जाते हैं, गुस्सा चढ़ता है लैपटॉप उठा के पटक देते हैं, गुस्सा चढ़ता है मोबाइल उठा के पटक देते हैं, गुस्सा चढ़ता है बर्तन उठा के पटक देते हैं। यानी जैसे भी हो आप वहां पर क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिवनेस करेंगे। यानी डिस्ट्रक्टिवनेस करने का मतलब लॉस, डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कोई ना कोई नुकसान करेंगे। अब वो नुकसान कैसा होता है? इस वाले में दोनों में सेम आ जाता है। This is the point of destructiveness. Okay, this is the explosion phase. And now next point is
next point is post explosion phase. Post explosion phase. What is this? This is post explosion phase. हमने बोला है ना कि 3 फेज हमने बताया था आपको. एक बताया था एक्सलेशन फेज, दूसरा बताया था एक्सप्लोजन फेज, वायलेंस फेज, एंड थर्ड बताया हमने आपको पोस्ट एक्सप्लोजन फेज. हमने पहले में बताया कि एक्सलेशन होता है, धीरे धीरे वो मोशन में आता है, यानी गुस्सा मोशन में आता है, और आफ्टर मोशन वो क्या करता है, फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, मार धाड़ शुरू हो जाता है, वो होता है एक्सप्लोजन फेज. एंड आफ्टर दैट जब मार धाड़ शुरू हो जाता है, झगड़ा खत्म हो जाता है, तो वहां पर रिपेंट आना है, पछताता है, फालतू का लड़ लिए यार, व्हाई वी आर फाइट टू ईच अदर, एट फाइनली वी डोंट फाइट टू ईच अदर. ठीक है, सो दिस इज पोस्ट एक्सप्लोजन फेज. इसमें क्या होता है, इसमें आप गिल्ट करते हैं, गिल्ट यानी अपराध को स्वीकार कर लेते हैं, हाँ चलो यार मेरी ही गलती थी. शेम करते हैं, यानी शेम करने का मतलब क्या है, शर्म आती है आपको, यार फालतू का झगड़ा कर लेंगे, नजर नहीं मिलाते हैं किसी से. दूसरा क्या है, आपको पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट भी मिलता है. उसके बाद क्या होता है, एपोलॉजी करते हैं, रिपेयर एंड promises. दिस इज गिल्ट करना, शेम करना, यानी गिल्ट का मतलब अपराध लगना, जिसे मैंने गलती कर दिया, शेम भी आ लगता है. पनिशमेंट मिलता है, यानी अपने आप को सजा दे लेते हैं, क्या कि 2-4-10 हज़ार का नुकसान हो जाता है, पैर हाथ टूट जाता है, मोबाइल लॉस हो जाता है. एंड क्या है, एपोलॉजी, रिपेयर एंड प्रोमिसेस. एपोलॉजी करते हैं, पश्चाताप के साथ साथ ये करते हैं, कोशिश यही करते हैं, वे ये करते हैं कि भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात पर झगड़ा नहीं करेंगे. दिस इज द एग्जाम्पल. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल, गिल्ट, शेम, पनिशमेंट, एपोलॉजी, रिपेयर एंड प्रोमिसेस. ओके, एंड नाउ डे स्टूडेंट्स, we finishing here, we are finished here. Anger, anger के बाद anger management, what is anger, and anger cycle, and after that we are discussing here controlling anger, how a person can control our anger. ठीक है, if you are suffering heart disease, rare disease of anger, so how you can control on this. ठीक है, how you can control on this. Now I have 2 or 3 more points we are discussing here, how we can control our anger. ठीक है, controlling anger means कंट्रोलिंग एंगर. कंट्रोलिंग एंगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यू नो दैट. लाइक थिंक बिफोर यू स्पीक. फर्स्ट इज थिंक बिफोर यू स्पीक. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज once you are calm, once you are calm, express your anger, express your anger, and get some exercise, get some exercise. And next is don't hold judge, don't hold a grudge. These are the controlling power of anger. This is the controlling power of anger. So dear students, so this is controlling anger. How can we control our anger? So this is first point, think before you speak. मतलब कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार सोच लीजिए क्या बोल रहे हैं,
सेकेंड इज वंस यू आर कॉम एक्सप्रेस और एंगर करा, जब आप शांत हो, तब जब आप गुस्सा हो जाएं, जब गुस्सा आपको लगे आ रहा है तो आप शांत हो जाइए, कुछ मत बोलिए। सेकंड चीज गेट सम एक्सप्रेस, मतलब क्या करना है, एक्सरसाइज, मतलब कुछ प्रैक्टिस करने लगे, जैसे योगा करना हो, हाथ चलाना हो, कूदना फिरना, जैसे ऐसे टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं। डोंट होल्ड अलग्रूज, कभी भी आप अपने किसी भी चीज को घमंड ना करिए, जहां आपके अंदर प्राउड आता है वहां आपका क्या निकलता है, एंगर निकलता है। So dear students, I hope you are get it in a good way. So dear students, this is anger, and this is our today's topic was anger and anger management. So dear students, now thank you. Have a good day. Have a nice day.